PSLV C-33 जिसे हमने अब बताया था कि 4 चरण होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण होता है और इस संबंध में VSSC, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर और लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर जो है उनके भी केंद्र बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। मैं इसी के केंद्रीय निर्देशों की जानकारी के लिए आप तक पहुंचाऊंगा एक वीडियो क्लिपिंग। उसके पहले इसरो उपग्रह केंद्र बैंगलोर और स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद दोनों बहुत महत्वपूर्ण केंद्र हैं इसरो के। इनके प्रमुख निदेशकों ने क्या हमारे सामने अपना अनुभव कैसे इसके निर्माण में जानकारी दी, इसी की छोटी सी एक वीडियो क्लिपिंग के लिए मैं आपके सामने एक लघु फिल्म प्रस्तुत करता हूं, जहां पे श्री डॉक्टर तवन मिश्रा सर, सैक के डायरेक्टर, और डॉक्टर एम अन्नादुरई, इसरो उपग्रह केंद्र के डायरेक्टर, इनके अथक परिश्रम के निष्कर्ष का परिणाम है हमारा ये IRNSS 1G। So 580 seconds into the flight, 178 kilometers altitude, vehicle is still going through the coasting phase. Another 200 seconds. एक छोटी सी वीडियो क्लिपिंग जो इनके अनुभवों को आप तक पहुंचाएगा। Brunei tracking in main auto. So 600 seconds into the flight, altitude of 182 kilometers. During combined coasting is normal. And we just heard the announcement, the performance of the vehicle during the combined coasting of PS3 and PS4 stage is normal. And during the coasting phase, there is no imparting of the velocity from the vehicle because there is no thrust that is being generated from the launch vehicle. But whatever energy that has been gained by the launch vehicle is being converted into a potential energy as the vehicle is climbing the altitude. राधाकृष्णन जी, हम जानकारी चाह रहे थे हमारे केंद्र निदेशकों के अनुभव के बारे में। एक छोटी सी क्लिपिंग मैं निवेदन करूंगा आपके सामने। SAC focuses on the design and development of space-borne instruments or payloads for ISRO missions. SAC also develops and operationalizes applications of space technologies for national development. The center also develops the ground systems, earth stations, and ground terminals, and image processing systems. PS3 stays separated. In the sky, the Saptarshi, they point to the polar star. 7 rivers of India, they connect all of us. PS4 engine And started. similarly, the 7 satellites of IRNSS will give us direction, position, and also connect the whole of India. Now that only 7 satellites can cover whole of India and give us our location. We went with a dual frequency system, L and S band, so that the ionospheric errors can be corrected. And each one of its electronics is built and conceived in India. It is a made in India payload, and its concept, its coding, its software, everything is built in India. Indian scientists could achieve this one, and it's a great credit to India's ingenuity, and it will open to a system which is much more accurate than the conventional navigation system what you people, all of us, are accustomed to it. ISRO Satellite Center, ISAC, in Bengaluru, develops the satellite platforms popularly called BUS and integrate these with the satellite payloads. ISAC also carries out research and development activities in the areas of structures, thermal systems and spacecraft mechanisms, digital and communication systems, integration and power systems and control systems. With the IRNSS 1G launch and reaching orbit and getting operationalized in a couple of weeks from now, the full constellation of IRNSS 1 consisting of the 7 satellites will be in operation. Starting from IRNS 1A to 1G, this 7 satellite realization is its own lessons ISRO Satellite Center has learned, wherein even the satellite technology is repeatable. Accordingly, the various systems have been realized in-house, then transferred to industry. Now you look at here, the major portion of the components, the systems came from industry, giving an impetus to ISRO, so that we can, with the industry and ISRO cooperation, we can do a lot more. The constellation has a fairly good percentage of composition
came from the Indian industry is concerned. Accordingly, when we go for the next generation of IRNSS satellites, these lessons learned will be used very effectively. Over and above that, even the components systems realized for IRNSS, we are even trying to see how it can be utilized for other missions also. For example, brick has come, brick can be used for the school or temples or churches or the hospitals like that. Similarly, the building components of IRNSS being considered very effectively, whether it can be used for other communication, meteorological, even remote sensing missions effectively. That way, when we are operationalizing IRNSS constellation, this has given a lot more beyond even navigation, how Indian space program can go proceed well. So welcome back. As we are going through the video documentary, we had two very important events that has happened. One was the separation of the third stage, PS3 separation, which is a solid stage at 662 seconds. Immediately following the separation of the third stage, as planned, within 10 seconds, we had the successful ignition of the PS4 stage, the fourth stage of PSLV at 673 seconds. Right now, the vehicle is at an altitude of around 235 kilometers. With a velocity of around 7.97. And if you look at the plot here, the vehicle has almost reached the orbital velocity, where we are seeing the perigee, which is the nearest point to the Earth, with an altitude of around 212 kilometers, and apogee, which is the farthest point from the Earth, at an altitude of 3,500. That means the 4 stages of the rocket has almost imparted the orbital velocity for the satellite to stay in orbit right now. In the subsequent phase of burning, which is for the next 200 plus seconds of the PS4 stage, you will find the apogee, the desired apogee is roughly around 20,000 kilometer plus, will be imparted. All the energy that the launch vehicle is going to generate will be imparted in the apogee. So you will be seeing on your screen the continuous increase in the apogee, where you are seeing the perigee of 217 kilometers, apogee of 4,200 and 4,300 kilometer with an inclination of 17.84 degrees. The flight time is 945 seconds. राधाकृष्ण जी, एक एनिमेशन फिल्म छोटी सी जो है किस तरह से चरण पृथक्कृत हुए, हम कोशिश करेंगे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। ये किस तरह से आप देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पे, किस तरह से तृतीय चरण जो है वो अपने चतुर्थ और अंतिम चरण से अलग हुआ, ये उसका एक एनिमेटेड चलचित्र जो आपके सामने पहुंचाया गया। इनफैक्ट ऐसी लगभग 6 पृथक्करण घटनाएं होती हैं जो पीएसएल में होती हैं चारों चरण के अलगाव के बाद। बहुचरण आधारित यान के विभिन्न चरणों को उनके उपयोग हो जाने के बाद मुख्य यान से अलग कर दिया जाता है। इस पृथक्करण के लिए आवश्यक है कि वो सुरक्षित और संघटक मुक्त हों। ये एमसीसी के अंदर का दृश्य सभी दर्शक देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन पर, किस तरह से विभिन्न वैज्ञानिक इस महत्वपूर्ण क्षण के साक्षी होते हुए हम लगभग 16 मिनट 57 सेकंड की दूरी पर, इस समय हम करीब 1010 सेकंड का समय व्यतीत कर चुके हैं। 1015 seconds, 291 kilometers. 17 minutes. The orbit is 228 by, with an apogee of around 7,000 kilometers. We have another less than 200 seconds to go. As per the pre-flight predictions, the cutoff of the fourth stage of rocket should happen at 1,181 seconds, and 37 seconds after the cutoff of the fourth stage, we will have the separation of the IRNSS 1G at 1,200 seconds. जी हाँ, दो और महत्वपूर्ण केंद्र हैं वीएसएससी और एलपीएससी। इसके बारे में जानकारी के लिए आइए हम देखते हैं एक और छोटी सी वीडियो क्लिपिंग, जिसमें दोनों केंद्र के प्रमुख अग्रिम पंक्ति से निर्देशित करते हुए वीएसएससी and development activities of satellite launch vehicles and sounding rockets are carried out and made ready for launch operations. The center pursues research and development activities for associated technologies such as launch vehicle design, propellants, aerodynamics, avionics, and polymers and composites. The seed for Indian space program was sown in this area, Thumba of Thiruvananthapuram district. And this seed now is grown into a big banyan tree called Vikram Sarabhai Space Center
this activity really started sometimes 1963 from the sounding rockets. This system now grew into the bigger launch vehicles like a PSLV, Fourth stage GSLV, performance normal. GSLV Mark III. This PSLV really is a vehicle, workhorse vehicle. Now this workhorse vehicle is really injected various types of satellite for different applications, either remote sensing 19 minutes. or communications or meteorology or weather monitoring. And you know that recently that our all IRNSS systems are launched by this our beloved PSLV. Can you imagine running your vehicle without fuel? Well, ISRO's launch vehicles and spacecraft are no different. They are powered by propulsion systems that are effectively fueled by the efforts of Liquid Propulsion Systems Center, LPSC. This is the center of excellence in the area of liquid PS4 propulsion. engine shut off. Here, Injection scientists conditions are and engineers carry out research and development of earth-storable and cryogenic propulsion systems. Key elements of launch vehicles and spacecraft Plus like 20 minutes. engines, stages, control systems, and components are built at LPSC. The center has units located at Valiamala in Kerala and at Bengaluru in Karnataka. LPSC's activities cover a wide IRNSS range 1G, of the seventh technologies, navigation satellite, is including separated fuel and placed chemistry, in the satellite sub-zero thruster orbit. development, transducers, Mission Director, and separation system of IRNS 1G, the seventh satellite in the navigation constellation is confirmed, and Mission Director hereby declares that PSLV C-33 IRNSS 1G mission is fully accomplished. Predefined orbit of 284 km perigee with an apogee of 20,650. What you are seeing on your screen is Chairman ISRO, Shri S. Kiran Kumar, who will be addressing the ISRO community. जी हाँ, इस समय हम एमसीसी के अंदर चलते हैं। चतुर्थ चरण के बाद जब हम उपग्रह अलग हुआ था, उसके बाद का घटनाक्रम सीधे एमसीसी से आप अंदर देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन पर। आज के हमारे 7वें नेविगेशन उपग्रह सफल प्रक्षेपण के शुभ संदर्भ में मैं बहुत ही हर्ष से आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमारे बीच में अपने बहुत ही व्यस्त कार्यक्रम के बीच ये उड़ान को देख रहे थे। उनको मैं हार्दिक स्वागत करते हुए हम सबको संबोधन करने के लिए आह्वान करता हूँ। मैं सबसे पहले इसरो के सभी वैज्ञानिकों को और इसरो की पूरी टीम को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। मैं 125 करोड़ देशवासियों को भी इस नए नजराने के लिए अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। स्पेस साइंस में भारत के वैज्ञानिकों ने अविरत पुरुषार्थ करके अनेक सिद्धियां प्राप्त की हैं और आज देश अनुभव कर रहा है कि स्पेस साइंस के माध्यम से सामान्य मानवी के जीवन में भी कितना बदलाव लाया जा सकता है। टेक्नोलॉजी मनुष्य के जीवन में किस प्रकार से उपकारक हो सकती है और भारत का स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में पदार्पण
भारत के सामान्य मानवी की जिंदगी में बदलाव के लिए, व्यवस्थाओं में सुधार के लिए, सुगमता के लिए एक बहुत बड़ी अहम भूमिका अदा कर रहा है। आज नेविगेशन के क्षेत्र में भारत ने अपना 7वां सैटेलाइट लॉन्च किया है। 7 सैटेलाइट एक के बाद एक सफलतापूर्वक लॉन्च किए गए और इस सिद्धि के कारण आज भारत दुनिया के उन 5 देशों में गर्व के साथ खड़ा हो गया कि जिसमें उसकी अपनी जीपीएस सिस्टम, उसकी अपनी नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम निर्माण हो गई। आज तक हम जीपीएस सिस्टम के लिए अन्य देशों की व्यवस्थाओं पर निर्भर थे। आज हम आत्मनिर्भर बने हैं। हमारे रास्ते हम तय करेंगे। कैसे जाना, कहां जाना, कैसे पहुंचना, यह हमारी अपनी टेक्नोलॉजी के माध्यम से होगा। और इसलिए भारत के वैज्ञानिकों ने आज 125 करोड़ देशवासियों को एक अनमोल तोहफा दिया है। हम जानते हैं कि आज के युग में जीपीएस सिस्टम का बहुत बड़ा रोल हो गया है। हमारा एक मछुआरा भी इस व्यवस्था के तहत मछली का कैच कहां ज्यादा है, मछली कैच करने के लिए कहां जाना चाहिए, शॉर्टेस्ट रूट कौन सा होगा, ये अब भारतीय सैटेलाइट के मार्गदर्शन में काम कर पाएगा। आसमान से उसको रास्ता दिखाया जाएगा, मंजिल का पक्का एड्रेस तय किया जाएगा। अब हमारे विमानों को अगर लैंड करना है तो बहुत सरलता से, एक्यूरेसी के साथ अपनी भारतीय व्यवस्था से वो कर पाएंगे। कहीं कोई डिजास्टर हो गया, बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा हो गई, उस स्थिति में कैसे मदद पहुंचानी, कहां पहुंचानी, स्पेसिफिक लोकेशन क्या होगा, ये सारी व्यवस्थाएं इस भारतीय उपग्रह के द्वारा जो नई व्यवस्था विकसित हुई है उसके कारण लाभ मिलने वाला है। इसकी क्षमता इतनी है कि कश्मीर से कन्याकुमारी, कच्छ से कामरूप तक वो भारत के तो हर कोने को सेवा देगा ही देगा, लेकिन इसके अतिरिक्त 1500 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में भी अगर कोई सेवाएं लेना चाहता है तो भी उसको ये सेवाएं उपलब्ध होगी। कहने का मतलब यह है कि हमारे पड़ोस के सार्क देश के जो जुड़े हुए हैं वे भी अगर भारत की इस सेवा का उपयोग करना चाहते हैं, क्योंकि आज वे भी दुनिया के किसी न किसी देश की सेवाएं लेकर के अपना गुजारा करते हैं, अब भारत भी अगर वो चाहते हैं तो ये सेवा उनको उपलब्ध करा सकता है। एक प्रकार से सदियों पहले हमारे नाविक समंदर में कूद जाते थे, सितारों के सहारे, चंद्र और सूर्य की गति के सहारे वो अपनी राह तय करते थे और मंजिल पर पहुंचने का प्रयास करते थे। सदियों से हमारे नाविक अनजान जगह पर पहुंचते थे और उनका सहारा हुआ करता था आसमानी सितारों, चंद्र और सूर्य की गति के सहारे वो अपने रास्ते तय करते थे। अब विज्ञान की मदद से हम इन सैटेलाइट और इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से इस काम को करने जा रहे हैं। भारत के मछुआरे, भारत के नाविक
समंदर में साहस के साथ चलने वाली हमारी सदियों पुरानी परंपरा, इसने एक अनभिज्ञ जगह पर, अनजान जगह पर जाने के रास्ते साहस के सिखाए हैं। और इसलिए हजारों साल से मछुआरों ने जो साहस दिखाया है, नाविकों ने जो अदम्य साहस से दुनिया में पहुंचने का प्रयास किया है, और इसलिए इस पूरी नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से मिलने वाली सेवाओं को आज हमने तय किया है कि सारी व्यवस्था, हमारी ये जीपीएस सिस्टम नाविक नाम से जानी जाएगी। इस व्यवस्था को मैं देश के करोड़ों करोड़ों मछुआरों की सदियों पुरानी परंपराओं को आदर्श मानते हुए, देश के गरीब गरीब मछुआरों को ये पूरी व्यवस्था समर्पित करने के इरादे से आज इसे नाविक नाम से अब विश्व पहचानेगा। और नाविक नाम से अब ये सेवा उपलब्ध होगी। ये हमारा अपना नाविक होगा, हमारे मोबाइल फोन में हमारा नाविक होगा, जो नाविक हमें हम कहाँ है उसका पता दे सकता है, कहाँ जाना है उसका रास्ता दे सकता है, और कहाँ पहुंचना है उसका भी हमें वो नाविक रास्ता दिखाएगा। और जब मैं नाविक की बात कर रहा हूं तो टेक्नोलॉजी की भाषा में अगर मुझे कहना है तो मैं कहूंगा कि नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, जो कि नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टलेशन, इस नाम को मैं NAVIC नाविक इस रूप में आज आपके सामने समर्पित करता हूं। 125 करोड़ देशवासियों को आज एक नया नाविक मिला है, जो नया नाविक हमें अपने रास्ते तय करने के लिए, अपना डेस्टिनेशन तय करने के लिए, हमारी मौजूदगी महसूस कराने के लिए काम आएगा। ये आसमानी व्यवस्थाओं के लिए काम आएगा, ये जमीनी व्यवस्थाओं के लिए काम आएगा, ये जल की व्यवस्थाओं के लिए भी काम आएगा। हमारी शिपिंग व्यवस्थाओं को भारत की ये सेवा ज्यादा एक्यूरेसी के साथ उपलब्ध होगी। हमारी रेलवे, आज हमारी रेल कब कहां है उसको जानने के लिए जीपीएस का उपयोग करने पड़ता है। अब हम किस क्रॉसिंग से रेल कहां पसार हुई, कितने सिग्नल से कहां दूर है, कहीं रेलवे के चालू ट्रेन में कोई सिग्नल देना है, सूचना देनी है, तो ये नाविक के सहारे हम दे सकते हैं। हम कार से जा रहे हैं, हम स्कूटर से जा रहे हैं, हमारे हाथ में मोबाइल फोन है, हम नाविक के सहारे तय कर सकते हैं कितना पहुंचे, कहां पहुंचना है, कहां खड़े हैं। एक प्रकार से जन सामान्य की आवश्यकताओं की पूर्ति का काम अब हमारे वैज्ञानिकों ने मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, मेड फॉर इंडियन, ये सपना साकार किया है। मैं आज इस शुभ अवसर पर 125 करोड़ देशवासियों को अपना नाविक देते हुए अत्यंत हर्ष और गर्व अनुभव कर रहा हूं। और मैं देश के वैज्ञानिकों को फिर भी एक बार कोटि कोटि बधाइयां देता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और मुझे विश्वास है कि हमारे स्पेस के साइंटिस्ट और नए करतब दिखाएंगे और नई खोज दिखाएंगे, और भारत का नाम आसमान की उन क्षितिजों को पार करते हुए विश्व में लहराएगा हमारा झंडा। इसी एक अपेक्षा के साथ फिर एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। लॉन्च हो चुका है 7वां और अंतिम अंतरिक्ष यान अब से कुछ देर पहले सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया गया है
और प्रधानमंत्री ने अब इसके औपचारिक नाम की भी घोषणा कर दी है। IRNSS के नाम से इसको जानते थे, लेकिन अब इसे नाविक कहा जाएगा। पूरी दुनिया इस सिस्टम को नाविक के नाम से जानेगी और यह सिर्फ भारत के लिए उपयोगी नहीं होगा, बल्कि भारत के आसपास 1500 किलोमीटर के क्षेत्र में यह अपनी सेवाएं उपलब्ध कराएगा। और प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि सार्क देश भी इसका फायदा उठा पाएंगे। अब से करीब आधे घंटे पहले इसका लॉन्च किया गया था और सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ। चेयरमैन इसरो के AS किरण कुमार ने इसका औपचारिक घोषणा की कि यह प्रक्षेपण पूरी तरह से सफलतापूर्वक हो चुका है। और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया। उन्होंने इसरो को बधाई दी, साथ ही साथ भारतवासियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि देश अनुभव कर रहा है कि स्पेस साइंस के माध्यम से सामान्य आदमी के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है और इसरो इस दिशा में सफलतापूर्वक काम कर रहा है। और इस क्षेत्र में एक और आज छलांग लगाई गई है जब नाविक यानी अपना खुद का रीजनल नेविगेशनल सिस्टम आज लॉन्च कर दिया गया है 7वें सैटेलाइट के साथ। प्रधानमंत्री ने कहा कि व्यवस्थाओं में सुधार सुगमता के लिए भारत दुनिया के 5 देशों के साथ गर्व के साथ खड़ा हो गया है। जो नेविगेशनल सिस्टम है अब तक 4 देशों के पास था, अमेरिका, रूस, चीन और यूरोपीय यूनियन, लेकिन अब भारत के पास भी नेविगेशनल सिस्टम होगा। ग्लोबल सिस्टम 2 के पास है, रूस और अमेरिका के पास, लेकिन भारत के पास भी अब एक तरह से रीजनल नेविगेशनल सिस्टम होगा, जो सिर्फ रीजनल नहीं बल्कि कुछ बढ़कर भी है, क्योंकि भारत के आसपास 1500 किलोमीटर के क्षेत्र में ही अपनी सेवाएं देगा, यानी आसपास के देश भी उसका फायदा उठा पाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब हम अपने रास्ते खुद तय कर पाएंगे, हमें कहाँ जाना है, कैसे जाना है, ये हम खुद तय कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि नेविगेशन सिस्टम आज की दुनिया में, आज के जीवन में काफ़ी अहम हो चुका है। मछुआरों से लेकर रेलवे तक, शिपिंग कंपनियां तक, यानी छोटे आदमी से लेकर बड़ी बड़ी कंपनियां तक इस सिस्टम का इस्तेमाल करती हैं। तो ये खुद के अपने भारत के खुद के नेविगेशन सिस्टम का इस्तेमाल कर पाएंगे। आपदाओं के वक्त भी ये सिस्टम काफ़ी काम आएगा, क्योंकि आपदाओं के वक्त किस क्षेत्र की क्या स्थिति है, किस लोकेशन पर किस तरह से सामान पहुंचाना है, इस बारे में भी अब इस नेविगेशन सिस्टम से मदद ली जा सकेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले सितारों के सहारे मंजिल का रास्ता तय किया जाता था, लेकिन अब विज्ञान की मदद से, सैटेलाइट की मदद से, नाविक की मदद से अपना रास्ता अब हम तय कर पाएंगे। तो इसरो के लिए आज का दिन काफ़ी अहम, पूरे भारत के लिए आज का दिन काफ़ी अहम। अपना खुद का नेविगेशन सिस्टम, जिसको हम नाविक कहेंगे, अब वो लॉन्च हो चुका है। अंतरिक्ष विज्ञान में एक बड़ी छलांग, नाविक के नाम से अपना खुद का नेविगेशन सिस्टम आज लॉन्च हो चुका है। इस पूरे सिस्टम को समझने के लिए नाविक की क्या उपयोगिताएं हैं, ये क्यों अहम है, इसको समझने के लिए स्टूडियो में खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है। अजय लेले, सीनियर फेलो, इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस से, अंतरिक्ष मामलों के जानकार। अजय साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रधानमंत्री बहुत खुश, काफ़ी गौरवान्वित महसूस कर रहे थे और पूरे देश के सामने जिस तरह से उन्होंने समझाया कि ये सिस्टम काफ़ी अहम होने वाला है। कितनी बड़ी लंबी छलांग है इसरो के लिए और ये भारतवासियों के लिए कितनी बड़ी उपलब्धि है? मेरे विचार से ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। अगर मुझे